So the meanwhile we have done the topic of government budgeting, and under the government budgeting we have done various types, various methods to collect the data, like how to revenue deficits are being collected, how the fiscal deficits are being collected, and the various formulas we have done underwards, जिसमें हमने fiscal deficits किया, then after revenue deficits किया, effective revenue deficits किया, primary deficits किए, and one more was, sorry, budgetary deficits किए हमने. So that was the types. Haven't open up it. ये on करते यहीं से होता. So we have done the types of budgets. Sorry, the methods of components of the budget, and we discuss about the objectives of the budgets as well, how the objective of budget can be calculated. Either it's a allocation of resources, stabilization of resources, economic development, how the resources of income and expenditure has been equalized, कैसे जितने पैसे आ रहे हैं उसको कैसे खर्च करना है, मैनेज करना है, that is also the part of the budget that we have discussed. Now we will discuss today about the types of budgeting. एंड आफ्टर द बजटिंग के बाद हमें ये, क्योंकि हम वैसे हमें ये टॉपिक पहले कर सकते थे हम टाइप्स ऑफ बजटिंग, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि डेफिसिट्स कितने तरह के होते हैं. हमने डेफिसिट्स पहले कर लिए हैं. तो डेफिसिट्स में हमने ये देखा था कि फिस्कल डेफिसिट आया, रेवेन्यू डेफिसिट्स आए, हमारे बजट डेफिसिट्स आए, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड बजट, इफेक्टिव बजट डेफिसिट्स आए. उन डेफिसिट्स को क्योर कैसे करना है. इफ वी हैव सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग आवर डेफिसिट्स इन द टोटल बजटिंग, इधर रेवेन्यू हो, फिस्कल हो, टोटल बजट हो, प्राइमरी डेफिसिट हो, किसी भी तरह का डेफिसिट है, उसको ठीक कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन स्टेज. ठीक है. फॉर दैट वी हैव अ FRBM, दैट एक्ट वाज देयर, who helps us to maintain, stabilize the deficits in the economy. Done. So before we're going for the FRBM, we'll talk about the types of budgeting. So we said that जब हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं, तो बजटिंग में हमें देखना पड़ेगा कितने तरह का बजट बन सकता है. One, we said that the first one is zero base budgeting. Zero base budgeting is the first topic. Write down. That is zero base budgeting. Okay. So it is started from zero base only. ये स्टार्ट कहां से होता है? जीरो बेस से स्टार्ट होता है. इसका मतलब क्या कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इवैल्यूएशन टू बी इनकम जनरेटेड, दैट इज टेकन टू बी अ जीरो. हम जब नेक्स्ट ईयर का बजट क्रिएट कर रहे हैं, बजटरी बना रहे हैं, तो हम पुराने हमारे जो रिवेन्यू जनरेशन हैं, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहे. Usually what we used to do, we do some increments. Like अगर हमारा पिछले साल का इतना लॉसेस चल रहा है, how we can increment that loss to be decrease. हम उस लॉस को डिक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्टिफाई करते हैं. हमारी इतनी इनकम जनरेट हुई, अगले साल कितनी इनकम और जनरेट करनी है जिससे हमारा किया हुआ खर्चा इक्वलाइज्ड हो जाए, that we used to do. But in the zero based budgeting we are finding the thing that हमारा जो भी base है, that is to be a equal, that is to be a zero. We are starting our budgeting from very initial stage, where the past pending expenditure revenue deficits are not to be taken or carry forward for the future. आगे नहीं उसको लिया जाता, जितने वो होते हैं उसको वहीं छोड़ के नया बजटिंग प्रिपेयर किया जाता है कि इस साल कितनी इनकम आएगी, इस साल कितना एक्सपेंडिचर होगा और उसको कैसे मैनेज करना है. We are not taking the whatever is being done into the past. So a few things that we need to talk about it. All the expenses are evaluated. All expenses are evaluated each time a budget is made. All expenses are evaluated each time a budget is made, and expenses must be justified, and expenses must be justified for each new period from beginning. For each new period from beginning. Before each new period from beginning.
This is basically to nullify the difference between the income and expenditure. We are not taking any the past backlog for future. We are taking it's being nullified. Whatever the income and expenditures are being there, that is to be equalized. And we are preparing our budget for the initial stage again. Zero based budgeting, base कुछ नहीं लेके चल रहे. नहीं तो हमेशा हम पिछली बार का बेस लेकर ही अपना इनकम और एक्सपेंडिचर को मेंटेन करते हैं. इसमें हम नहीं लेके चलते. One important thing is that all expenses must be justified for a new period. जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारा इनकम है, that is to be nullified for the next year. That is to be taken from the zero base from the year. तो इसमें हम अपना नया बजट प्रिपेयर करते हैं. हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि लास्ट ईयर हमारा इतना इनकम आया था और इतना एक्सपेंडिचर गया था, तो इस साल भी इतनी इनकम आएगी. We are not expecting, and we want that income and expenditure should be nullified. Zero base बचे. आगे वाले के लिए हमारे पास कोई ना डेफिसिट बचे ना सरप्लस बचे, इक्वलाइज्ड हो जाए. सरप्लस हो सकता है, वो प्रॉफिट वाली बात होती है, लेकिन डेफिसिट नहीं आना चाहिए. वी वांट दैट थिंग. सेकंड टाइप इज आउटकम बजटिंग. आउटकम बजटिंग it was introduced in 2005. First of all, it was introduced in year 2005. It analyzed the process of and ministries. हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक तो ये 2005 में ही इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले ये बजटिंग नहीं था. फिर उन्होंने क्या कहा, इट इज अ प्रोसेस टू एनालाइज ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज वर्किंग प्रोसेस. उनके हर डिपार्टमेंट और जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, उनके काम के प्रोसेस को चेक किया जाता है और उसको नलिफाइड करने की कोशिश की जाती है कि वेदर वट एवर द इनकम इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो इनकम आ रही है और जो मिनिस्टर्स को हम पैसा खर्च करने के लिए दे रहे हैं, हाउ दे आर प्रोसेसिंग, हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर मनी. सो हमारा आउटकम क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है. तो आउटकम से ही आपको मालूम हो जाएगा. इट इज जस्टिफाइड टू कैलकुलेट द रिजल्ट्स or outcome of a different ministers and different departments. So it is done by into the budgetary outlay. हमारा जो total expenditure होता है उसको divide किया जाता है different departments में. जैसे रेलवे को पैसा दे दिया, हेल्थ को दे दिया, एजुकेशन को दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन को दे दिया. फिर उन मिनिस्ट्री से उनके रिटर्न पूछे जाते हैं कि आपने जहां खर्चा किया उससे क्या आउटपुट आया. आप फायदे में रहे, आपने रेलवे, अपने एजुकेशन पे खर्चा किया तो एजुकेशन पे आपने बनाया, आपने स्कूल्स ओपन किए. अब उन स्कूल से जो रिटर्न आएगी, अगर वहां पे एनरोलमेंट होगी, नो डाउट वी विल हैव अ लेस इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट का इनकम होगा, सोशल वेलफेयर होगा. बट स्टिल जो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर है, दैट विल बी आस्क्ड बाय यू पीपल. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर. एक साल में आपने जो इनकम और एक्सपेंडिचर किया है, उसका क्या लेखा जोखा क्या रखा आपने, वो आउटकम क्या रहती है, ये उसको जानने की कोशिश करता है. एंड इट वर्क्स द प्रोसेस ऑफ ऑल द कार्ड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज. सभी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करता है. इट मेजर्स द डेवलपमेंट आउटले ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एज वेल. एक तो मिनिस्ट्रीज की बात करता है और सारे प्रोग्राम्स की, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं, उनका क्या इनकम दिया गया और उसका क्या आउटपुट आया, उसके आउटकम के बारे में डिस्कस किया जाता है. कि अगर आपको एक पॉलिसी या एक प्रोग्राम के अंदर हमने, गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कराया है, तो उससे कितना रिटर्न आया, उससे कितनी इनकम जनरेट हुई, क्या सरप्लस हुए, क्या डेफिसिट हुए, दैट आउटकम इज बीइंग डिस्कस्ड अंडर दिस टाइप ऑफ बजटिंग. डन. इट मेजर्स द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट. सारी चीजों के बारे में बात करता है. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. कैसे? क्वांटिटेटिव तो यही वाली बात हो गई, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाटएवर यू हैव डन. आपने मॉनेटरी सेंस में क्या पैसा खर्चा और क्या पैसा आप लेके आए हैं. तो क्वांटिटेटिव तो ये सारी चीजें हैं. क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, इट मे इफेक्ट समवेयर समहाउ इनटू द वेलफेयर टू.
it may decrease the poverty too, it may decrease the unemployment too, it may decrease the inequality too. तो इन पॉलिसी प्रोग्राम के ऊपर पैसा खर्चने से आपका कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर भी इकोनॉमी में हो रहा है। तो उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, आपके उस बजट को पैसा खर्चने से कितना, जो रोड्स बन गई वो तो हमारा क्वांटिटेटिव है, आपने कितने किलोमीटर की रोड बना दी, दैट इज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर, कि आपको इतना इनकम पैसा दिया था खर्च करने के लिए, आपने ऑल पंजाब इज बीइंग नाउ कनेक्टेड टुवर्ड्स रोड्स, तो वो क्वांटिटेटिव है। लेकिन इनके कनेक्शन होने की वजह से क्वालिटेटिवली क्या बेनिफिट होने लग गए शुरू में, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग मेजर्ड, दैट वो भी हम इसके बजट के इफेक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें आउटकम के बारे में डिस्कस करते हैं। द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज this process of budgeting done at micro level that sets the measures physical target to allocation of every planned projects under the various ministries। क्या करते हैं कि जितने भी हमारे प्लान प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उन सारे प्लान्स के जो टारगेट एलोकेट किए गए हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वी लाइक टू फाइंड आउट द आउटकम बजट। हर मिनिस्ट्री को टारगेट्स दिए जाते हैं, उनको कुछ प्लान के ड्यूरिंग पैसा दिया जाता है, दैट whatever we are investing in this, that has to be come up with this plan, what is the outcome of this, that we need to discuss under this। ये हमारे को इसमें डिस्कस करना होता है कि हमारा आउटकम क्या आया। Done। The next is gender budgeting। As its name tells that it is about the gender, that whatever gender based assessment of budget, जेंडर से रिलेटेड आपके बजट की जो असेसमेंट की जा रही है वो जेंडर बेस्ड बजटिंग के अंडर आ रही है। इनकॉर्पोरेट द जेंडर पर्सपेक्टिव एट ऑल लेवल ऑफ बजटरी प्रोसेस, लिख लीजिए लाइन, इट इज अ जेंडर बेस्ड असेसमेंट ऑफ बजट। जेंडर बेस्ड असेसमेंट ऑफ बजट, एक तो आपके बजट की जो असेसमेंट है वो जेंडर के बेसिस पे की जा रही है। व्हाट डज इट मीन कि व्हेनेवर द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू द बजट, दे विल आस्क यू कि आपने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया उससे फीमेल को कितना एम्पावरमेंट हुआ, जेंडर इनइक्वालिटी कितनी कम हुई, रूरल एरिया में फीमेल को कितने बेनिफिट्स प्रोवाइड हुए। तो आप जो टोटल बजट का एक्सपेंडिचर है ना उसको फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि जो फीमेल पे खर्चा पैसा किया जा रहा है, एम्पावरमेंट बढ़ रही है कि नहीं, लिटरेसी रेट बढ़ रही है कि नहीं, हेल्थ एजुकेशन ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द फीमेल, वो बढ़ रहे हैं कि नहीं, बेनिफिट हो रहा है फीमेल को कि नहीं हो रहा। वो बजट जो है टोटल बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेल एंड फीमेल ऑब्वियसली, and what is the ratio of the benefit coming towards a female perspective, that is called भैया assessment of budgetary हमारी, ठीक है जी, हमारी gender based budgeting का assessment हो गया। So budgeting of gender equity, it incorporates the gender equality as well। हमारी gender equality के बारे में भी ये main role play करते हैं, because they want कि बजट जो है ना वो सबके इक्वल हो, जितना पैसा आया वो फीमेल को ज्यादा बेनिफिट करे, बिकॉज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल, सो एटलीस्ट वट एवर द इनकम इज बीइंग स्पेंडेड आउट। इसीलिए तो देखो हम जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहे हैं, हमने कौशल विकास योजना बनाई, हमने शहरी विकास योजना बनाई, हमने मनरेगा बनाया, हमने बहुत सारी पॉलिसीज जो हमने इनकॉर्पोरेट की, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एंड XYZ प्रोग्राम्स, उन सब प्रोग्राम्स में नाउ दे, क्योंकि it is obvious that whenever we are providing you with an employment opportunities, we are removing the poverty reduction programs, उसमें सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। बट here we are talking about कि उसमें फीमेल को कितना शेयर मिला। जैसे कि हमने मनरेगा में बात की कि अब फीमेल को उतना हाफ जो 133% जो एम्प्लॉयमेंट मिला जाएगा वो फीमेल को मिलेगा। तो वो क्या बता रहे हैं कि आपको उस बजट में जो आपके लिए मनरेगा के लिए जो पैसा गवर्नमेंट ने अलॉट किया उससे फीमेल का बेनिफिट कितना हुआ, शहरी विकास योजना बना दी उससे फीमेल का बेनिफिट कितना हुआ। I'm just giving an example. It doesn't mean like we are talking about the शहरी विकास योजना with respect to female. I'm talking about all the departments, all the ministries. जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें फीमेल का बेनिफिट क्या है, एम्पावरमेंट कितनी आएगी, फीमेल एम्पावरमेंट कितनी आएगी, एंड जेंडर इक्वालिटी कितनी आएगी। Whenever you're talking about gender equality, it's related to the female. Okay.
Next is strategy used by the government to ensure the public fund allocated in the way so that the priorities of the gender equality and the women empowerment should be there. दो चीजें ही हो, एक तो gender equality हो, एक women empowerment. ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं ना. Women empowerment and gender equality. These are the two basic necessities or the requirements of this budget. What is the objective of this? Write down. एक सिर्फ word लिख कर इसको objective करके आप लिख सकते हैं. इसका objective क्या होता है? To identify the gender specific need, to identify the gender specific need and priorities of women in different sectors. Done. Women priority in all the sectors. अभी हमने इसको आफ्टर 2017 स्टार्ट तो हमारे काफी देर से वो 75 के बाद हो रखा है. 2017 में हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको और प्रोमिनेंट कर दिया और अपनी बजटिंग में इसको मोर इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया. सो अंडर द फ्लैगशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ Women and Child Development, the Ministry of Women and Child Development, 2017 में Ministry of Women and Child Development launched a gender budget portal, provide a gender budget portal which provides information on gender budgeting initiatives, at central and state level. Gender budgeting statement at central and state level. अभी इसके लिए जब इन्होंने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर इसको इनिशिएट किया, इसमें इन्होंने एक चीज बोली कि अभी हमने जो लाइन लिखी हमने उसमें बात किया कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के अंडर ये लॉन्च किया 2017 में. क्या लॉन्च किया कि जो भी हमारे आप बजटिंग करोगे, विमेन बजटिंग करोगे, उसको आपको सेंट्रल और स्टेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू, देयर विल बी अ पोर्टल जिसपे आपके सारे डेटा की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. जब वो अपने एनुअल स्टेटमेंट बनाएंगे, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट अपना बजट प्रिपेयर करेगा, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम रिप्रेजेंट करेगा, तो उसी पोर्टल के अंदर उनको एनुअल जेंडर इक्वालिटी की अपनी स्टेटमेंट भी पब्लिश करनी पड़ेगी कि आपने फीमेल के लिए क्या काम किया है. दैट इज टू बी गिवन एज एन एनुअल बेसिस ऑन द सेम पोर्टल वेयर दे हैव गिवन द डेटा रिगार्डिंग अदर बजटिंग थिंग्स. सो दे स्टार्टेड, गवर्नमेंट मैंडेट ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज टू प्रिपेयर द जेंडर बजट स्टेटमेंट एंड दे हैव टू पब्लिश इट ऑन द सेम वे. जेंडर बजट स्टेटमेंट, आपको एक जेंडर बजट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि आपकी स्टेट ने फीमेल के डेवलपमेंट के लिए क्या किया. जैसे हरियाणा इज प्रोवाइडिंग सम फ्यू बेसिक काइंड ऑफ पॉलिसीज व्हिच इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड बाय अदर स्टेट्स. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जो स्पेसिफिक अपनी लाडली योजना जो है वो स्पेसिफिक हरियाणा ने स्टार्ट की, तो वो बताएंगे कि हमने जब बजट मिला तो हमने स्पेसिफिक फीमेल के लिए ये रोल प्ले किया, ये पॉलिसी सिर्फ फीमेल के लिए लेके आए. तो दैट इज वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी, दैट इज इन सेंट्रल स्टेट, सेंटर की तरफ से है. लेकिन लाडली योजना की अगर 2 फीमेल गर्ल आर देयर इन द फैमिली देन दैट मच मनी विल बी गिवन टू द सेकंड चाइल्ड. या फिर अगर आपकी उनकी मैरिज पे आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, वो एक गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है. तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी टोटल जब बजट प्रेजेंट करते हैं उसमें फीमेल वाला जेंडर का जो पर्सपेक्टिव है वो भी रखना पड़ता है. सो दैट इज रिगार्डिंग टू योर जेंडर बजटिंग. डन.
Now the next one is incremental budgeting. So incremental budgeting is the part of in which we have done something extra. In this you are talking about all the income and expenditures which is being taken on the base year. Base year पे जो भी आपके income expenditure थे, आप base को नहीं लेके continue कर रहे. अभी इंक्रीमेंटल करेंगे ना उससे ज्यादा समझ में आएगा. इंक्रीमेंटल में क्या करते हैं, हम हर साल जो खर्चा है या इनकम के सोर्सेज हैं उनको बढ़ा देते हैं, टारगेट्स बढ़ा देते हैं कि इस बार हमने जो अपना डेफिसिट है और कम कर देना है. वो फायदे वाला टारगेट है ना. बढ़ाने का मतलब, डेफिसिट को बढ़ाने का टारगेट मतलब डेफिसिट बढ़ाना नहीं है, डेफिसिट को कम करना मतलब टारगेट को बढ़ाना है. तो उसमें हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन. इसमें हम प्रीवियस वाले को नहीं लेकर चलते हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नल एंड वॉइड थिंग, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 0. अभी जितनी इनकम आएगी उसमें से इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे, देखेंगे बेनिफिट होता है कि लॉस होता है. सो जीरो बेस का मतलब बेस ही नहीं है हमारे पास कोई. नहीं तो हर एक वाले में क्या करते हैं हम जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करें हम क्या कर रहे हैं, बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं ना कि पीछे से अब फायदा हुआ कि नहीं हुआ. सो दैट्स व्हाई हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्रीवियस बेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन ओनली. लेकिन इंक्रीमेंटल में जो हम बात करेंगे, इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या करते हैं कि हम अपने नए नए स्मॉल एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाते हैं. हर साल नया साल कोई खर्चा होगा, हर साल कोई नया सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का आएगा, तो अपने टारगेट्स को रिवाइज किया जाता है, स्मॉल इंक्रीमेंट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस इनकम. सो इन दिस वी आर whatever the small changes made into the existing budget is called incremental budgeting. Small changes or small changes existing budget to arrive a new budget. हम अपने पुराने बजट में, the old budgeting में existing budget भी से बोल सकते हैं, इसमें कुछ इंक्रीमेंट की जाती है एंड देन वी आर क्रिएटिंग अ न्यू बजट. दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बजटिंग. We are adding some small amount of in the existing budget is called incremental budget. So no fixed formula to arrive the incremental budgeting. कोई formula नहीं है हमारे पास कितना परसेंट बढ़ाना है, but we are just taking an example that we will increase some point of money. Only incremental amount is added. पुराना बजट वैसे चल रहा है, only incremental amount is added. थोड़ा सा 5% ग्रो कर दिया, कम कर दिया, वो टारगेट ऐड किए जाते हैं सिर्फ. एंड करंट फाइनेंशियल ईयर बिकम द बेस ईयर फॉर फॉरकमिंग ईयर. अब देखो इसमें हमने कहा कि जो ओल्ड बजट होता है वो अगले बजट के लिए क्या बन जाता है, बेस ईयर बन गया. तो अभी ये जो सपोज करो हम 2021 की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 22, हमने 21 के ही बेस को उठाया प्लस उसमें कुछ इंक्रीमेंटल टारगेट्स को ऐड किया और 22 का बजट बना दिया. जब 2023 का बजट बनाएंगे तो इसको बेस मान लेंगे. तो इट मींस टू से दैट वी आर ऑलवेज टेकिंग सम बेस. जीरो बेस बजटिंग में हमने बेस नहीं लेना. We are not taking any base to be there. Whatever income is coming at that time period, whatever the expenditure is coming at that time period, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहे हैं. लेकिन इसमें हम हमेशा पिछला बेस लेते रहते हैं और उस बेस में कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस करते रहते हैं. इंक्रीमेंट का मतलब ही चेंज होता है. कुछ इंक्रीमेंट्स करते रहते हैं, स्मॉल चेंजेस करते रहते हैं, टारगेट्स को रिवाइज करते रहते हैं. और जितना जब अगला चला जाते हैं तो ये वाला ईयर उसका बेस बन जाता है, फिर और आगे चले जाते हैं तो ये इसका बेस बन जाता है. दैट्स इट. लास्ट वन इज परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग. Performance based budgeting हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे बजट क्रिएट कर रहे हैं
क्योंकि all the departments, all the ministries, all the programs and policies are not providing the same results in the one budget. सारे प्रोग्राम, सारे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, सारे फैक्टर, सारे सेक्टर इकट्ठा रिटर्न नहीं दे सकते और एक जैसा रिटर्न नहीं दे सकते, इसलिए सबका टारगेट अलग है, सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग है। हमारे कैपिटल बजटिंग, कैपिटल डेफिसिट अलग हो सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट अलग हो सकते हैं। हो सकता है ट्रेड के थ्रू हमने कम बेनिफिट लॉस कमाए, लेकिन हमने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा नुकसान कमा लिया। So there must be a difference in the type of budgeting. That's why we are preparing a different budget for different performance. क्यों? If I am asking you to perform for a 1 year, आपको फाइनेंस दिया जाता है, आपको सब सोर्सेज दिए जा रहे हैं और आप परफॉर्म करते हो, आपके रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। जब आपके रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे तो फिर हम आपको अगली बार जब नेक्स्ट टाइम हम आपको स्टडी कराएंगे तो हम आपको सेम तरीका नहीं पढ़ाएंगे। जो जिनको आ रहा है उनको हम उन क्लास के साथ नहीं बैठा रहे जिनको सेम नहीं आता। तो वी विल क्रिएट अ गैप बिटवीन द टू टाइप ऑफ population that they are for the revision one and they are for the base one. इनको भी बेस ही नहीं आता, इनको बेस कराओ, इनको रिवाइज कराओ। आप अपने टारगेट के 5% के टारगेट को अचीव कर चुके हो, आपने अपना 2% का टारगेट भी अचीव नहीं किया, तो आपको और इनको सेम बजट तो नहीं दे सकते ना अगले साल के लिए। हम इनके बजट को रिवाइज कर देंगे और आपके बजट को शायद दोबारा से वही 2% का टारगेट लेने के लिए कहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड, कि हर कोई बजटिंग, हर कोई मिनिस्ट्रीज, प्रोग्राम्स, हर कोई सेक्टर, हर कोई पॉलिसी एंड प्रोग्राम सेम सेक्टर का ग्रोथ रेट नहीं अचीव कर सकता, इसलिए सबके बजटिंग के अकॉर्डिंग, टारगेट्स के अकॉर्डिंग बजट भी अलग होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनके बजट्स भी अलग होते हैं। सो दैट कैन बी फ्लेक्सिबल, इट कैन नॉट बी रिजिड टुवर्ड्स ऑल, इट कुड बी फ्लेक्सिबल बजटिंग। सो results rather than making money spent, encourage to make a reconsider priorities, and agencies have been flexible to make a decision that they are not easily permissible under the traditional budgeting. जब हम पुराने नॉर्मल बजट्स बनाते हैं तो उसमें हम सबको टारगेट दे देते हैं और सारे टारगेट को सेम रिवाइज करते हैं। अगर इकोनॉमी ग्रोथ रेट कर रही है, इकोनॉमी 6% से ग्रो की, तो क्या हम कहेंगे कि इंडस्ट्री वालों तुम 6% ग्रोथ मत करना, तुम 2% पे ही रहो क्योंकि तुमने पिछला टारगेट अचीव नहीं किया? नहीं। और हाँ जी, फार्मास्यूटिकल आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप 10% की जगह 15% के टारगेट को लेके चलो। नॉर्मल बजटिंग क्या कहती है? अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो सारे सेक्टर को ग्रो करना चाहिए। आप अगर 2% का टारगेट नहीं रख सकते, इस बार 6% का टारगेट अचीव करो। That is to be done into the normal budgeting. नॉर्मल बजट में अगर ग्रोथ रेट का टारगेट आया तो सबके पास ग्रोथ रेट का टारगेट आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस बजटिंग में उस सेक्टर को उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा तो उसे वही बजट दिया जाता है जो पहला अचीव नहीं किया, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके जरा सा टारगेट अचीव करने को दिया जाता है। बिकॉज अगर मैं 2% टारगेट अचीव नहीं कर पा रही तो मुझे 6% का टारगेट तो वैसे ही अचीव नहीं होगा। So they are giving on the behalf of performance, not like your traditional budget in if the growth rate is being done into the nation, all supposed to go for a same target. वो नहीं है, दोनों में अलग चीज है। Done. So these are the types of different kinds of budgeting. Khushbu, Amandeep, Richa, Shaurya, is there any doubt in the types of budgeting? Okay. अगर वो थर्ड वाले में इन्वेस्ट को प्रायोरिटी, हाँ जी, हाँ, तो इसी वर्क में जैसे कि हेल्थ है, उसके पास एफिशिएंसी ज्यादा होने से तो उसको भी जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या ना क्रिटिसिज्म है वो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको जॉब नहीं देनी। जैसे आप कह रहे हैं 33% रिजर्वेशन, अगर जैसे 100 में से 67 सीट्स हैं उसमें मेल ज्यादा है और 33 सीट्स वुमेन के लिए, एक मेल है वो वुमेन से ज्यादा एफिशिएंट है, तो उसको फिर नहीं मिलेगी। हाँ, मत मिले, 67 को तो मिली है ना। वो क्या हो सकता है ना कि वो मेल 67 मेल से भी ज्यादा एफिशिएंट है। नहीं, हाउ कुड यू मेजर दैट ही इज मोर एफिशिएंट? दोनों का मेल और फीमेल दोनों का। तो फिर तो इसका मतलब तो मेल इज ऑलवेज डोमिनेंट, then there should no 33% to be given to female. That's why I know I always against that reservation in any kind of reservation, not like the gender and the caste. कोई भी reservation नहीं होनी चाहिए. It's not about you are a female then you should get a reservation and you are from reserve category you should get a reservation. Why? It should not. It should be on the base of capabilities, like what is done into the government sector.
गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, फॉर्म निकले, नो डाउट वी डू सम काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन, इतने परसेंट उसको दिए जा रहे हैं, इतने परसेंट इतनों को दिए जा रहे हैं, 10 सीट है तो 4 इनको है, 3 इनकी है, 2 इनकी है, 1 इनकी है, वी डिवाइड द रिजर्वेशन ऑन द टोटल नंबर. बट वंस यू गो फॉर अ प्राइवेट सेक्टर, दे हार्डली मैटर्स योर सरनेम, whatever is your surname, keep it with you, we don't need it, we need it whatever you can perform. आप 5 लोग बैठे हो तो वो ये नहीं करेंगे मेरे को HDFC बैंक में 3 मैनेजर चाहिए, एक रिजर्व कैटेगरी में चाहिए, एक फीमेल चाहिए और एक मेल चाहिए. No, they will say come perform, who will complete the targets, that will be my employee, otherwise we don't need anyone, not a reserve category, not the female category. So जो economy, this is just a side of part of my topic, but this is reality. Like whenever we are moving towards a reservation, that may create, that was created before times just to create a upliftment of the poor society, not to create a havoc into the society. वो एक दूसरे से लड़ाने के लिए नहीं बनाई गई थी, वो सिर्फ suppressed लोगों को उठाने के लिए बनाई गई थी. But now we are taking that thing as to be a पार्ट ऑफ एडवांटेज. इसीलिए जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पर प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा है, और प्राइवेटाइजेशन कभी भी रिजर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, ना उसको फॉलो करता है. कोई भी प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन को नहीं कंसीडर करता. ऑल द पब्लिक सेक्टर इज बीइंग फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ रिजर्वेशन, इधर जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन और इट कुड बी अदर काइंड. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट लाइक इफ वी आर गिविंग अ पार्ट टू द फीमेल, that is to be reduce the benefit. Maybe if he is efficient, he may get job somewhere else. He is not being stuck to that job only, na? He may do job somewhere else if he is being so efficient or something like that. So it is just like the same thing happened into the Haryana, into panchayat or municipality corporation elections. Government in the first time it was in Rajasthan or Gujarat, I believe. Rajasthan, that was in Rajasthan very first time period, and the second time it started into Haryana, that reservation for female regarding towards education status, कि आप पंचायत के इलेक्शंस में भी एक तो फीमेल रिजर्वेशन कीजिए, और फीमेल रिजर्वेशन के साथ साथ क्वालिफिकेशन जो होगा वो क्राइटेरिया होगा. ऐसा नहीं कि कोई भी फीमेल कैन बी द पार्ट ऑफ द दैट सोसाइटी ऑन द इलेक्शंस. दैट शुड बी, दे मस्ट बी हैव अ बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ 12th और लाइक समथिंग दे शुड, and if they are, they can elect themselves, they can be a part of the elections. What happened? Because the female was being reserved, उन्होंने अपने टोटल नंबर में फीमेल को रिजर्व कर दिया. उससे क्या हो गया? मैक्सिमम फीमेल्स 10th जिसने पास की हुई है घर में, and rather than me, if I am a male person of the family and my wife is in 10th pass into the same area, I will say मेरी सीट आप लोगे उस सीट के लिए वोटिंग, तो वो सीट के लिए वोटिंग ले रहा है. अल्टीमेटली फीमेल इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, the all decisions are been taken by the male only, but the female will be there for just for the signatures and just to take on a tag of that municipality corporation का जो इस टाइम का MC है वो कौन है? फीमेल है. उस पंचायत का ऑनर कौन है? उस पंचायत की जो भी मेन अध्यक्ष जो है वो कौन है? सरपंच कौन है? वो फीमेल है. अल्टीमेटली इट इज जस्ट लाइक a eye wash. The things are being given to the female, the things are not in actually the hand of the female. No property rights are being in the hand of female, but still the things are being said that 33% is being reserved for the female. No, now the parliament bill is again one more their thing is in. कोई results नहीं है उसके, because we are still living in an orthodox society. We are not saying that if we are looking and staying standing together with the hand to hand with the male, it means we are getting benefit out of it. We have created more havoc for female for this thing. I'm not just saying because I'm a female, I'm just saying because it's a reality. Because I'm just staying out of my topic, थोड़ा सा अलग हो रहा है, but it is reality. Who created society? If we say that, have you ever heard the word? हमने हमेशा क्या सुना वर्ड? जेंडर इनइक्वालिटी. जेंडर इनइक्वालिटी. Have you ever heard the word sex inequality? Because there is a difference. The sex is a difference of your biological differences. Gender, what we have created a society. हम लोगों ने society को define किया. Gender is divided into 2 parts. Let's say now the third part is also the part of the society. Let's say 2 parts are there, the male and the female. Biological difference stands for their sex, but their routine works are being defined by the society, that is called gender.
Male is supposed to do these work. Male is supposed to dress up like that. Male is supposed to do this kind of things. Male is supposed to do perform that rules and regulations. Female are supposed to do this thing. Female are supposed to wear this thing. So female are try to be get ready in that way only. फीमेल मेल के अटायर में आ जाए और मेल फीमेल के अटायर में आ जाए तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं करेगी ना. If you will come with liner and kajal and dangles into hair, people will laugh, isn't? And if I'll come as in a haircut and tomboy look and I'll teach you, you will not accept me like that way. Would you? No. Why? Because society has created कि this is the society, this is the gender supposed to wear this thing. मेल को ये पहनना है और ऐसे रहना है और ऐसे चलना है और ऐसे खाना है और ये बनाना है और ये पहनना है. फीमेल को ये किसने, ये भगवान जी ने नहीं बना के भेजा. दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय जेंडर. सोशियोलॉजी भी आपका सब्जेक्ट शायद कुछ पार्ट में होगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी का कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सोसाइटी का डिफरेंसेस जो आ रहे हैं आजकल सोसाइटी में, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग्स, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एज वेल. पहले तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बट दैट इज नॉट बीइंग डिसाइडेड बाय समवन व्हिच वी यूज्ड टू से द heels. That is not meant for female. That was meant for male. In initial past eras, because male supposed to do a horse riding and they need to wear a heeled shoes because they can easily tap up on the ground. Easily heel can prick the land ना, इजिली टक हो सकती है ना. तो वो हॉर्स पे जब हॉर्स राइडिंग करते थे तो उनके फीमेल मेल के लिए वो बनाई जाती थी हील्स, या तो प्लेटफॉर्म हील्स ताकि वो उसमें आसानी से टैप करके गिर सके, या फिर वो piercing like हमारी पेंसिल हील्स सो दैट दे कैन इजिली पुट फुट इनटू द ग्राउंड, अपने आप को स्टेबल कर सकेंगे हॉर्स राइडिंग से. बट लेटर ऑन स्टेज दैट इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम फीमेल टू मेल, isn't it? Male to female, isn't it? Society that the whole household work supposed to be done by female, but the now female said that no, we are not supposed to do the household work. We used to go to the office from 9 to 9 and we will do the household as well. Here we are doing both of the jobs. So society has not given us this situation, we have created our situation by own. So that is all the, ये हम इसलिए बात करें क्योंकि सोशियोलॉजी का पार्ट है ये कि सोसाइटी में जो वर्क्स फीमेल के लिए डिवाइड थे वो मेल स्टार्ट कर दिया. All best cooks are male. All best makeup artists are male. All best dress designers are male. और भी जो भी ले सकते हो, that are the male, which are the cup of tea of girls. All female top working are done by females. आप कॉर्पोरेट में थे, डिफेंस में थे, फीमेल वहां पे भी आ गई. सो इट इज बीइंग अ सोसाइटी इज क्रिएटिंग. जितना डेवलपमेंट होता है सोसाइटी में ये मर्जिंग होना शुरू हो जाता है और उसमें सबसे पहला ये इनइक्वालिटी वर्ड खत्म होके इक्वालिटी की तरफ बढ़ता है. जब हमने इनइक्वालिटी से स्टार्ट किया ना, जेंडर इनइक्वालिटी, वो जेंडर इनइक्वालिटी स्लोली एंड स्टडी व्हेनेवर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, इट इनइक्वालिटी रिमूव्स एंड इट कम्स टू बी इक्वालिटी. एंड वेयर इट गोज आफ्टरवर्ड्स आई डोंट नो. इक्वालिटी इसके बाद कहां जाएगी मुझे नहीं मालूम है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट with the development we are moving from inequality equality. वो बदल रही है, वो changes हो रहे हैं society में. So these are the types of gender budget, the budgeting. One is to be zero base, when no base is to be taken. पिछले साल का कोई बेस नहीं है, इस साल के एक्सपेंडिचर और इनकम के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे और अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे. सेकेंड वन इज योर which one is outcome budget. That depends upon all the departments, all the ministries, all the policies, all the programs, whatever their outcome is, accordingly we will create a new targets for them. Incremental says that was started in 2005. Then we go for the next one is a gender budgeting, let's say gender based budgeting, in which we are doing all the budget is being defined on the behalf of their gender based statements. And in 2017 we have child and women, Ministry of Child and Women, who launched that every state, every center has to put their financial statement regards to the female on the portal. पोर्टल पे आपको फीमेल की ये कितना बेनिफिट किया आपने, कितनी पॉलिसी बनाई, वो डालनी पड़ेगी. एंड देन आफ्टर वी कैन से देयर इज अ इंक्रीमेंटल. In each base year we are adding some of the few new
upcomings, and that was to be for the next coming year. And again, in next coming year, that becomes to my base, and I have to increment some small amount of changes. That can be our targets, that can be our income, that can be expenditure. फिर है हमारा performance budget. On the behalf of the performance of different sectors and different ministries, different programs, we target different targets for the future. It's not like a general budget कि common development हुआ तो सारे sectors को same development का target दिया जाएगा. No, we are providing different targets to the different performance based. That was the types of budgeting. Done. Let's move. अभी इसके बाद, जैसे हमें इससे पहले वो डिस्कस कर लेना चाहिए था, हमने थोड़ा सा बाद में डिस्कस किया. दैट इज टू बी डेफिसिट्स. कल हमने बात की है सारे काइंड के डेफिसिट्स के बारे में. ये तो टाइप था ना. अभी टाइप के बाद आप आएंगे कि हाँ जी हमारा बजट में जो है वो नुकसान हो जाता है, डेफिसिट आ जाता है. फिर वो डेफिसिट कितनी तरह का होता है, दैट वी हैव डिस्कस यस्टरडे. अब हम यहाँ से इसके बाद स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू करना कि अगर डेफिसिट आ गया और हर साल ही आ रहा है, from long time period economy is facing either a revenue deficit or the fiscal deficit or primary deficits. अब उसको क्या किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? Any answer from your side? Okay. और क्या कर सकते हैं जी? टैक्स रिफॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, यस. और फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स हो सकते हैं कुछ. मेन ऑब्जेक्टिव तो फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए. ठीक है, मॉनेटरी भी हो सकते हैं बट फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. और क्या हो सकता है? रिवेन्यू रिफॉर्म्स. हाँ, रिवेन्यू रिफॉर्म्स हो सकते हैं. वो हमारा रिवेन्यू कहां से आएगा, ये बात करना चाहते हैं. हाँ, रिवेन्यू कहां से आएगी. बट उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उससे क्या होगा? ठीक है जी. हमने एक FRBM एक्ट बनाया. एक्ट का मतलब मैंने आपको क्यों बोला कि आप बताएं क्या करेंगे हम. जब भी कोई भी नुकसान होगा, डेफिसिट होगा और वो कंटिन्यू चलता जा रहा है, आपके पास भी कोई चीज का नुकसान हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप उसके लिए रेदर देन मेजर्स लेने के आप कोई एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हो. मेजर का मतलब होता है आज ठीक कर दो, फिर कल देखेंगे, फिर कल फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अगेन. आज मॉनेटरी पॉलिसी लगा ली, कल फिस्कल लगा लेंगे, फिर कोई रिवेन्यू टैक्स कम कर देंगे, फिर हमने इंपोर्ट कम करने बंद कर दी. हम छोटे छोटे वो मेजर्स होते हैं, छोटे छोटे रिसोर्सेज को, रिजल्ट्स को निकालना. लेकिन जब वो चीज लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती रहती है, देन यू हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, एंड दैट एक्शन इज सपोज्ड टू बी टेकन इनटू द फॉर्म ऑफ सम एक्ट. कोई रूल, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई नियम कानून, कोई अधिकार बना दो कि इस चीजों के ऊपर चलना है तो आप डेफिसिट्स पे नहीं आओगे. तो दैट्स व्हाई इन, अब हमने ये बनाया क्यों, कैसे बना? ड्यूरिंग 90s, कल हमने उस दिन बात की 20s एज वेल, 2008 में भी हमने श्रीलंका की बात किया था, हमने पाकिस्तान की बात की कि देयर इज अ डेफिसिट्स आर गोइंग ऑन because of any reason and they don't have any option to come up. What they can go for is either IMF or the World Bank or the other international economies for the sub financial rebates. So same as thing they said that Indian economy में भी आई थी before 90s. तो 90 पे हमने वो रिफॉर्म बेस के लिए पैसा लिया इकोनॉमी से, एंड वी स्टार्टेड कमिंग अप विद द LPG पॉलिसी. इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो गई. पहले नुकसान हो रहा था, पैसा बाहर देश से आ गया, ट्रेड बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो गई. लेकिन इवन आफ्टर 90s, जब आपने अपने आप को ग्लोबलाइज्ड कर दिया, जब आपने अपने आप को प्राइवेटाइज्ड कर दिया, जब आपने लिबरल कर दी पॉलिसी, कोई भी कंपनी खोल ले, कोई बिजनेस खोल ले, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्राइवेटाइज्ड कंपनी बना सकती है, प्रोडक्शन की इंक्रीज कर सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री हो गया. फ्री नहीं हुआ मतलब लिबरल हो गया. फ्री नहीं था, टैक्स लगते थे, बट फ्री लिबरल हो गया. उससे क्या होगा? फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप प्रॉब्लम से बचोगे कि प्रॉब्लम की तरफ और बढ़ोगे? आप डेफिसिट्स को और बढ़ा दोगे, आप घाटों को और बढ़ा दोगे. पहले तो आपको पता था कि आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, कर सकते हो तो रिस्ट्रिक्टेड से कर सकते हो. अब आप फ्रीडम टू इंपोर्ट,
क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस अब एनटीबीज थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, बट टैरिफ नहीं था। टैरिफ को रिमूव थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया था, कुछ कंट्रीज के साथ था, कुछ के साथ नहीं था, कस्टम यूनियन क्रिएट कर ली हमने। तो बिकॉज ऑफ दीज ऑल हमारे जो लॉसेस थे ना वो बढ़ते गए। फिस्कल डेफिसिट्स, रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट्स हमारे कितने साल तक जो थे बहुत सारे बढ़े, जिसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड 3 बेसिक चीजें होती हैं, एक तो होता है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा है डेट टू जीडीपी रेशियो। ये तीनों चीजें अगर इकोनॉमी में बढ़ती जा रही हैं, फिस्कल डेफिसिट मींस, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला देखिए जरा कॉपी में, कल हमने किया था, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस क्या है, नेट बोरोइंग्स। रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस, मतलब जो पैसा मॉनेटरी फॉर्म में वो घाटे में चल रहा है। एंड डेट टू जीडीपी रेशो, जीडीपी का कितना परसेंट आपने एज अ डेट की फॉर्म में लिया हुआ है। अगर आप अपनी टोटल जीडीपी को लिक्विडाइज कर दो तो उसमें से कितना पैसा आपने बाहर के देशों से ले रखा है, डेट का रेशो टोटल जीडीपी में से, या जीडीपी का वो वाला रेशो जो आपने डेट ले रखे हैं, वो आपकी जीडीपी नहीं है, वो आपका डेट है। कहीं ना कहीं पुराना पैसा चल रहा है, वही आपकी जीडीपी को बढ़ा रहा है। तो वो जीडीपी का डेट जीबीटी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो, दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये कंटिन्यूस बड़े सालों तक बढ़ते रहे ना, then we have to take a strict action. And that's why in few books they said that it was being given by Sinha, and some says it's in Vajpayee Sarkar, it is in 2000 year. They come up in the parliament to talk about कि we need to take some strict action. हमें कोई एक कमेटी, कोई प्रोग्राम या कोई एक्ट या कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम कुछ रूल्स बना दें कि नहीं जी इससे ज्यादा डेट नहीं लेना, इससे ज्यादा डेफिसिट नहीं करना, इससे ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना। कुछ रूल्स बनाओ। ऐसे तो हर साल जो सीट पे आता है वो बना लेता है और अगले साल के लिए छोड़ देता है, लॉसेस हो जाते हैं। So we need to create some policy and program. We need to create some act. That's why in 2013 we come up with this. 2004 में 3 में आ गया था, एक्ट बन गया था, एंड 2004 में उसने अपना एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। 2000 पे उसको प्रेजेंट किया गया इन द पार्लियामेंट दैट वी कैन गो हेड विद समथिंग, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो 2-1 साल तक उसके ऊपर फाइनलाइजेशन हुआ, एंड 2003 में हमने उसको फाइनल कर दिया और 2004 में उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो दैट वाज द नीड ऑफ, अब उसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहला, डेफिसिट्स हो रहे थे, दूसरा डेफिसिट होते हैं तो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। हमारे बोरिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वी डोंट हैव दैट मनी टू पे बैक, तो वो पे बैक करने के लिए फिर लोन लेते थे, वो फिर और जीडीपी का रेशो बढ़ता जा रहा है। 40% जीडीपी जो है वो लोन से खड़ी हुई है, तो दैट इज नॉट अ बिग साइन, गुड साइन फॉर इकोनॉमी। तो उस रेशो को कम करना है, दैट वाज अ टारगेट। तो और क्या हो सकता है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है जब भी आप डेट लेना शुरू कर देते हो। टोटल इनकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का हिस्सा क्या होता है, कल भी किया था, बोरिंग्स, है ना। वो बोरिंग्स जब बढ़ती जाएंगी, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का हिस्सा लॉस है, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, बीच का हिस्सा लॉस है। लॉस कैसे कवर होगा, बोरिंग करके होगा। तो वो बोरिंग्स बढ़ जाएंगी जब, तो कहां से आएंगी बोरिंग्स? 3 तरीके से आएंगी, या तो हमसे, पब्लिक से, या फिर आरबीआई से, या फिर फॉरेन से। हमसे सिक्योरिटीज बेच के खरीद सकती है गवर्नमेंट, पैसा ले सकती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं। आरबीआई से लेती है तो आरबीआई क्या करती है, नई करेंसी को इशू करती है। नई करेंसी इशू करेगी तो फिर एक और नुकसान हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। थर्ड क्या है, सिंपल सा सोर्स है, गो एंड टेक अ लोन फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज। इंटरनेशनल चाहे किसी कंट्री से ले लीजिए, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले लीजिए, तो आप ये लोन लेकर उसके बीच का गैप पूरा करते हो। सो दैट्स व्हाई दे सेड दैट व्हेनेवर देयर इज अ गैप, that is borrowing is the gap between the income and expenditure, then that gap is to be reduced. ये हमारा नुकसान, जितना गैप बढ़ता जा रहा था उतने हमारे फिस्कल डेफिसिट्स बढ़ते जा रहे थे। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमारा ऑब्जेक्टिव था इस गैप को कम करना। जब इस गैप को कम करोगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर ये गैप बढ़ता जाएगा तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। इकोनॉमी स्लो डाउन रहेगी, उसके साथ सारे फैक्टर, इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, आउटपुट, जीडीपी, सारी चीजें लो डाउन हो जाती हैं। सो वी नीड टू कंट्रोल दैट डिफरेंसेस बिटवीन टू द एक्सपेंडिचर। दैट्स व्हाई दे सेड दैट
उससे बड़ी चीज क्या है कि पैसा आ तो हर साल रहा है, हर साल बजट क्रिएट किया जाता है, टैक्स से नॉन टैक्स से इनकम आ जाती है, एक्सपोर्ट करके पैसा आ जाता है, गोल्ड रिजर्व्स रख के, लोन लेकर, इन्वेस्टमेंट्स करके, शेयर मार्केट में शेयर पैसा लगाकर पैसा आ तो रहा है और पैसा जा भी रहा है। उससे बड़ा काम क्या है, उसको मैनेज करना, कि हर पॉलिसी, अब गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दिया, उस पर 2 करोड़ रुपया दे दिया, उस 2 करोड़ का एक्चुअल बेनिफिट क्या हुआ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेनिफिट्स। ये बजट चेक करता है ना कि क्या करा क्या आपने उसका टोटल बजट का, तो उसका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेनिफिट्स चेक करने इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप चेक नहीं करोगे, अगले साल फिर आप गवर्नमेंट के पास जाओगे कि 2 करोड़ और दे दो, पिछली बार वेलफेयर हो गया था, आप थोड़ा सा और वेलफेयर करेंगे, वो वेलफेयर का एक्चुअल बेनिफिट आपके पास तो नहीं आया ना। एज वी यूज्ड टू से, गवर्नमेंट इज गिविंग 100 रुपीज, इट रीच टू 1 रुपी टू यू, बीच में सारे पैसे मिडमैन ही खा जाता है ना। वहां से चले वो छोटे, जिसने टेंडर लिया, टेंडर ने आगे टेंडर लिया, टेंडर ने और टेंडर लिया, वो करते 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 आपके पास सिर्फ 1 रुपी मिलता है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट स्टार्टेड व्हाट, सॉरी, हाँ, डीबीटी कैन बी से, है ना। ये एक और हमारी योजना जो बैंकिंग अकाउंट्स वाली थी, अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट बेनिफिट, है ना, स्कीम। तो एक और स्कीम है जिसके अंडर हमें सब्सिडाइज रेट पर, जो हमें नहीं, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को अकाउंट ओपनिंग करने के लिए था वो, हाँ वो तो है, डीपीटी तो है ही, जिसके अंडर हमें बेनिफिट प्लान्स को जनरेट करने, जो हमें उसमें मिलती है स्कूल गोइंग स्कूल स्टूडेंट्स को, हम लोग नहीं, सॉरी नहीं, वो मिलती है उनको बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पुअर क्लास के स्टूडेंट्स को, जिनका बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको गवर्नमेंट कहती है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हो जाएं। गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड होने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, तो गवर्नमेंट विल लाइक टू ओपन अप ऑल द अकाउंट्स फॉर एवरीवन, हर बच्चे का अकाउंट खोला जाएगा और वो क्लास बेसिस पे उनको पैसे डाले जाएंगे, हर मंथ उनको पैसे दिए जाएंगे। मिड डे मील मिल रहा है, स्कूल से कॉपी पेन मिलेगा, बट दैट इज टू जस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ, और 3 टाइम पे तो खाना खाना है ना, तो 2 टाइम, तो उसके लिए वो आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है। तो वो भी जो है डायरेक्ट बेनिफिट प्लान जो थे स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, उनका लेखा जोखा लिख के रखना कि कितना बेनिफिट आया, कितना रिजल्ट्स आए। तो पैसा आना और पैसा जाना इज नॉट अ बिग थिंग, पैसे को मैनेज करना इज बिग थिंग। पैसा दुनिया में कमाना आसान मुश्किल नहीं है, पैसा बचाना मुश्किल है। So that's why you have to manage from where the money is there. If you have mind, if you have hands, you can earn lot of money in the life. But how to manage that money, that is important. जब ये एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, तो यही पूरी सोसाइटी और पूरी इकोनॉमी के लिए। तो दुनिया में इकोनॉमी पैसा तो कमा रही है, लेकिन उस पैसे को मैनेज नहीं कर पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही, ट्रांसपेरेंट नहीं है वो पैसा। पैसा जाता किसी के पास है और मिलता किसी और को है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि इसका एक एक्ट बनाओ जिसमें हम ना सिर्फ 3 टॉपिक, कौन कौन से, फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट, रेवेन्यू डेफिसिट मैनेजमेंट, डेट टू कैपिटल, डेट टू जीडीपी रेशियो, ना सिर्फ ये 3, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी, और उसका मैनेजमेंट भी कर पाए, जो आपके बीच की चीज है उसको ट्रांसपेरेंट कर पाए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सके। हम 1 साल तक तो बेनिफिट्स को ठीक कर सकते हैं, लॉसेस को कम कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड तक बिना लॉसेस के रुकना मुश्किल है। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स में एक चीज ये भी था कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। मैक्रो इकोनॉमिक क्या क्या होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंसेस, हाँ जी। अनएम्प्लॉयमेंट माइक्रो है कि मैक्रो है, इन्फ्लेशन माइक्रो है कि मैक्रो, मॉनेटरी पॉलिसी माइक्रो है कि मैक्रो, एजुकेशन पॉलिसी माइक्रो है कि मैक्रो, मेरी बिजनेस को चलाना माइक्रो है कि मैक्रो, डिमांड इज माइक्रो और मैक्रो, यू शुड आस्क किसकी डिमांड, आपकी डिमांड की पूरी सोसाइटी की डिमांड, इज इट एग्रीगेट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड। इफ इट इज एग्रीगेट डिमांड माइक्रो, एग्रीगेट टोटल होगी मैक्रो, इंडिविजुअल माइक्रो, इजंट इट। कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो,
मैं कंज्यूमर हूं, मेरी चॉइसेस क्या है, मेरी प्रेफरेंसेस क्या है, मुझे पेन लेना है कि पेंसिल लेना है, वो मेरी चॉइसेस हैं। और मार्केट मैक्रो, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, दीज ऑल कमिंग अप टू द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो दैट्स व्हाई दे सेड दैट कि आपको टोटल इकोनॉमी की मैक्रो पॉलिसीज को लॉन्ग टाइम सर्वाइवल, लॉन्ग, if you want to find out in any state, in any district how many villages are there and उस village की कितनी land है, कितने लोग हैं, कितने schools हैं, कितने hand pump हैं, कितने उसमें टुलू पंप है, you can find out all the data on statistical abstract of any particular state। किसी भी स्टेट का स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट निकाल के आप उसके डिस्ट्रिक्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट का अलग स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट है। आपको सिर्फ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ जींद का चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम दैट। अगर आपको जींद के आगे ब्लॉक चाहिए तो ब्लॉक के आगे डिवाइड है, ब्लॉक के आगे विलेजेस डिवाइड है, सो यू कैन गेट ईच एंड एवरी सिंगल डेटा फ्रॉम दैट। आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब, पूरे इंडिया का हेल्थ से रिगार्डिंग, फीमेल मेल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ से रिगार्डिंग पूरा डेटा अवेलेबल होगा। जनरल पॉपुलेशन ये वो हमारा होता है उसका एजुकेशन का डेटा, लेबर फोर्स का डेटा, आपको हर डेटा जो है वो उसकी पब्लिश होती है, हर साल उसको अपनी एक पब्लिश करनी पड़ती है। तो ये वही चीज़ कहता है कि अपने जो भी आप मैनेज करो उसको ट्रांसपेरेंटली यू शुड कीप इट ऑन टू द बुक्स। सेकेंड इज मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका भी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर सकते हैं ना, इसमें पॉइंट्स को सिर्फ आप लिख सकते हैं। इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कर लीजिए। एक हमने सबसे पहला लिया कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, फिजिकल, ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट, हाँ इसको लिख सकते हैं। फर्दर वी कैन से इट इज फिस्कल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि एक साल तो आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, डेफिसिट नहीं हुए, अगले साल फिर से डेफिसिट आना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आपके लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। इसको हम लॉन्ग टर्म टारगेट भी बोल सकते हैं, है ना। The last one is fiscally macroeconomic, ठीक है, बस इतना 3-4 बात। Now these are the basic things that we have to do, the objectives of your targeting. Fiscal target, इसमें हम macroeconomic भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। Target should be for long time period. Now further, how the process of this FRBM is going on. अब उसमें FRBM में करेंगे क्या? टारगेट तो बता दिए क्या चाहते हो, क्या उसके पिलर्स होने चाहिए वो पता चल गए, ऑब्जेक्टिव क्या है वो पता हो गए। अब हम उसमें कर क्या रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू विद 3 to 4 बेसिक थिंग्स जो हमारे मेन प्रोसेस होते हैं। कि हमने एक पॉलिसी बनाई, एक एक्ट बनाया कि जब भी इकोनॉमी में एक साल में जब बजट बनाया जाएगा तो बजट के ना कुछ टारगेट रख देंगे, उन टारगेट को पूरा करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। देन वी विल एंड ऑफ द ईयर हम उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे कि आपने उस परफॉर्मेंस चेक करेंगे आपने ठीक किया कि नहीं किया। सो वी विल डू, वन इज फिस्कल टारगेट्स रिडक्शन इन फिस्कल टारगेट्स, या फिस्कल टारगेट लिखिए सिर्फ पहली बात हमारी इसके अंदर क्या आती है, फिस्कल टारगेट। आपने फिस्कल टारगेट्स रखते हो, ठीक है। इसको मैं अभी अपने अभी लेटेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट टाइप ऑफ फिस्कल टारगेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। एक इन्फॉर्मेशन देंगी, कोई भी पिक्चर जाएगा नहीं, समान से मिलके जाना चाहिए। सो हमारे फिस्कल टारगेट्स दो तरह के हो गए, एक तो हो गया एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट, इसके अंदर है
इसके अंडर फिस्कल टारगेट्स के अंदर 2 टारगेट आ गए। पहला होगा एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट, eliminate the revenue deficits and reduce fiscal deficit. Done. ये हमने टारगेट रखने हैं जब भी आप ये FRBM एक्ट बनाओगे, जब भी आप हर साल का बजट उठाओगे तो आप देखोगे कि ये 2 चीजें हर बजट के टारगेट के अंदर लिखी जाएंगी कि आपको कितना रिवेन्यू डेफिसिट को कितना कम करके लाना है। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसको हर साल हम थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेम एज हमारा फिस्कल डेफिसिट, तो इन दोनों के टारगेट्स को कम करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। इफ वी कैन ऐड अपॉन विद द करंट सिचुएशन ऑफ दिस सेम, वी कैन से अभी लेटेस्ट टारगेट जो हमारे FRBM के हैं, दैट इज फिस्कल डेफिसिट टू बी रिड्यूस बाय 3%। 3% तक लेके आना है हमारे फिस्कल डेफिसिट्स को। फिस्कल डेफिसिट्स को रिड्यूस करना चाह रहे हैं हम 3% तक। ये था हमारा टारगेट रिड्यूस करना। पहले था हमारे 4.5% था फिस्कल डेफिसिट, हमने उसको रिड्यूस करके लेके आए हम 3% तक। अब इसके बाद फिर से हमने टारगेट रख दिया 2.5 का, मतलब वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दिस डे बाय डे। सो दैट टाइम पीरियड द हमारा जो रिवेन्यू फिस्कल डेफिसिट्स हैं वो हमने 3% टारगेट रखा है। सेकेंड हमारा जो है जी रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट का हमारा टारगेट था 3.8% का। ये भी 4.5% से रिड्यूस होके आया है, बहुत ज़्यादा था पहले टारगेट, अब इसको रिड्यूस करके धीरे धीरे हम लेकर आए हैं इतना। ठीक है जी। एंड वैसे ही इसके अंदर आता नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है, बट वी आर सेइंग बिकॉज करंट डेटा वी हैव, करंट डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो 2.8% होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2%, 3%, 5% ऑफ वो ध्यान रखें कि हम GDP का परसेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे 3 टारगेट्स हैं जो हमने करने ही करने। तो पहला तो हमारा क्या है कि फिस्कल टारगेट्स को अचीव करना, जो हमारे टारगेट्स हैं वो कितने हैं उसको अचीव किया जाए। सेकेंड वी हैव 3 मेन जो इसके कंपोनेंट्स हैं। सेकेंड इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज जो है टारगेट्स की बात की जाती है। 3 इयर्स के लिए और 5 इयर्स के लिए टारगेट रखे जाते हैं कि हमें मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए 3 to 5 ईयर के लिए रख रहे हैं, 3 to 5 टर्म के रोलिंग प्लान्स बनाए जाते हैं। हमने जैसे पहले बात की ना, प्लानिंग के अंदर हम रोलिंग प्लान्स बनाते हैं। इसमें 3 ईयर के मीडियम टर्म के फिस्कल पॉलिसी से रिगार्डिंग टारगेट्स रखे जाते हैं और उसको अचीव करना और उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए ऑब्लिगेशन होती है कि हमें वो मानने ही पड़ेंगे वो टारगेट्स को। एंड दैट टारगेट्स आर टू बी गवर्नमेंट टू डिफाइन द पीरियड फॉर 5 years to 3 years डिपेंड्स अपॉन द विच गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन। ये टारगेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे कि अगर इस बार आपने 3 years तक के लिए टारगेट रखे थे, बीच में सरकार चेंज हो गई, तो you will not change this type of targets, that will remain constant for a long time period। आपके political instability इन targets को define नहीं करती, उनको change नहीं करेगी। So these are the target like to medium term 3 to 5 year, अगर rolling plan है तो 3 year का, otherwise max to 5 years के लिए इनका जो time period है, और उसमें हम अपने कुछ targets रखते हैं, उन targets को government को achieve करना पड़ता है। ठीक है। एंड इट इज लीगली ऑब्लिगेशन टू अचीव द टारगेट्स। आपको हर जो भी मिनिस्ट्री है, जो भी सेक्टर है, जो भी पॉलिसी है, जो भी प्रोग्राम है, उनको इन टारगेट्स को पूरा करना एक ऑब्लिगेशन मानी जा रही है ना। सेकेंड इज हमारा, अभी टारगेट आ गए, अब टारगेट को देखेंगे क्या एक्शन लिया, टारगेट जब दे दिया आपको। सो इट इज फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी
रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी, स्ट्रेटजी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। दिस इज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज एंड द पॉलिसीज टू अचीव द टारगेट। ये इनके एक्शन प्लान्स होते हैं, स्ट्रेटजी या फिर एक्शन प्लान, किसके? सेंट्रल के और स्टेट के, कि उन्होंने जो ये टारगेट दिए गए थे उसको कैसे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कैसे पूरा करेंगे, क्या एक्शन लिया जाएगा अपने अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपने उन एक्शन को, जो टारगेट्स दिए गए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको पूरा करने के लिए, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। सो अब स्ट्रेटजी क्या होती है? आपका टारगेट क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट कम करना, फिस्कल डेफिसिट कम करना, डेट को कम करना, स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाना, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? अब जो आप बात कर रहे थे ना, टैक्स लगा देंगे, खर्चा कम कर देंगे, वो चीज़ें यहाँ पर है कि आपने वो एक्शन किया, वो टारगेट नहीं है, वो आपकी प्रोसेस है। तो आपने क्या प्रोसेस किया? आपने टैक्सेशन पॉलिसी में बदलाव किया। इसके अंदर हमारी बात क्या आई? टैक्सेशन पॉलिसी। आपने एक्शन क्या लिया कि मैंने टैक्स कम कर दिया या मैंने टैक्स बढ़ा दिया अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। घाटा था ना, घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स लगा दिए। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस किया। दिस इज माय एक्शन टुवर्ड्स टू अचीव माय ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, वी कैन से सम की फिस्कल प्रायोरिटीज। फिस्कल प्रायोरिटीज क्या है? फिस्कल क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इनकम। इनकम की बात यहाँ पे हो गई तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे को प्रायोरिटाइज करना कि मेरा खर्चा कम से कम हो। ऐसे जगह पर पैसा नहीं लगाना है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न नहीं आता। सो गवर्नमेंट नीड टू कंट्रोल देयर फिस्कल एक्सपेंडिचर। थर्ड वन इज की फिस्कल मेजर्स टू इवैल्यूएट हाउ द प्रपोज्ड पॉलिसी और एक्ट विल वर्क ऑन। कोई भी जो पॉलिसी और प्रोग्राम है, उनकी वर्किंग को चेक करना, प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज करने का मतलब होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लेके आना, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद के लिए शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करना प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट खर्चा है पहले कर लो एंड जो थोड़ा लेस ऑफ इंपॉर्टेंट है उसको बाद में कर सकते हो अगर पैसे बच गए तो। डेफिसिट्स में नहीं आना हमें। सो दीज आर द बेसिक लिमिट। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या चाहते हैं जी? डेट लिमिटिंग। डेट को लिमिटेड कर दो, मिनिमल कर दो, व्हाटएवर कैन से। डेट को कम से कम लेके आना है। इट इम्पोज द लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट डेट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट। हम जो भी है सेंट्रल को एंड स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को ये हिदायतें दे देते हैं कि आपने जो लोन्स लेने हैं, डेट लेने हैं, वो अपने लिमिटेड जोन के अंदर ही लेने हैं, मिनिमल लेने हैं, ताकि आपके ऊपर बर्डन आए ही ना। क्योंकि अगर लोन लोगे क्या होगा? कौन से डेफिसिट बढ़ेंगे और कौन से बढ़ेंगे? इसके बीच का डिफरेंस कौन सा था? इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स। भूल गए? इंटरेस्ट रेट किसका जाएगा? जो डेट लोगे। सो दैट्स व्हाई दे सेड दैट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे फिस्कल डेफिसिट और हमारे प्राइमरी डेफिसिट कम रहे, इसका लोन कम लो। लोन अब लोगे तो एक बार खर्चा आ जाएगा और हर साल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो प्राइमरी डेफिसिट बढ़ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट वांट टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डेट यू हैव टेकन। डन? The next one is medium term expenditure framework statement. Medium term expenditure framework statement.
मेन हेडेड पॉइंट याद रख लीजिए। यहाँ पे टारगेट दिया, टारगेट के बाद क्या एक्शन लोगे? एक्शन में मतलब आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ यू आर टेकिंग एन एक्शन फॉर दैट, कि आपने पॉलिसीज में चेंज किया, आपने प्रोग्राम्स में चेंज किया, ये आपका सिर्फ एक्शन है। लेकिन एक्सपेंडिचर किया, फिर आपने जब प्लान कर लिया कि इसको कम देना है, इस पे ज्यादा पैसा खर्च है, देन यू विल पुट इट द थिंग्स ऑन दिस साइड। जब ये पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि घाटा आ गया, खर्चा ज्यादा हो गया, टारगेट तो कम था, तो फिर ये आएगा। तो आप इसको वैसे याद करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, पहले टारगेट रखा, टारगेट के बाद एक्शन बनाया, एक्शन के बाद खर्चा हो गया, खर्चे के बाद यू हैव टू टेक सम डेट एंड डेट हैज टू बी कंट्रोल्ड। दैट इज ओनली थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस। बस लास्ट जो है वो कहते हैं अभी जो ये सब कुछ है ना वो क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट एंड इट कुड बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी खर्चा आपने किया जो है उसका डिस्प्ले करना चाहिए आपको फिस्कल पॉलिसी के अंदर और फिस्कल इंडिकेटर्स के अंदर। जब भी आप फिस्कल पॉलिसी बनाओगे तो उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कितना खर्चा आपने कौन सी पॉलिसी के ऊपर किया। तो दैट इज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस अंडर द FRBM एक्ट। FRBM करता क्या है? टारगेट देता है गवर्नमेंट को कि आपने खर्चे का, आपकी इनकम का, आपके लोन का, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट का टारगेट क्या होना चाहिए। उन टारगेट के लिए क्या एक्शन प्लान बनाओगे, एक्शन प्लान के अंदर फिर कितना खर्चा करोगे, उन खर्चों के बाद आपका कोई नुकसान हो जाएगा, यू हैव टू टेक अ डेट, दैट शुड बी लिमिट। वो भी एक नंबर फिक्स अमाउंट में डेट लेना है, लोन लेना है। अगर वो डेट भी आप नहीं ले पा रहे, अगर ले लिया नहीं लिया, वट एवर इट्स बीन डन, दैट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। आपने बिल्कुल साफ सुथरा मैनेज करके बताना है कि ये इस साल का लेखा जोखा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसे कम है, हमने लोन लिए हैं, दिस इज द स्टेटमेंट। सो दैट इज टू बी डन अंडर FRBM एक्ट। ये हम करते हैं। अब उन्होंने कहा कि जब हम FRBM एक्ट बना रहे हैं तो कुछ टाइम पीरियड में तो कभी तो हमें कुछ कोई ऐसी वो मिले, रिबेट मिल जाए कि इस साल नहीं कर पाए। हो सकता है कभी हम कह दें कि इस साल सॉरी हम टारगेट पूरे नहीं कर पाए, कोई हमें एस्केप क्लॉज मिल सकता है, कभी तो हो सकता है। कब? कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए तो गवर्नमेंट के लिए हमने क्या किया, तो नेचुरल क्लैमिटी थी, हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए, सो देयर आफ्टर दैट ऑल इज एस्केप क्लॉज। कि इससे बचने का भी एक तरीका होता है कि टारगेट अगर आप पूरे नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड एस्केप क्लॉज, जिसको हम रिलैक्सेशन भी कहते हैं। रिलैक्सेशन अंडर दिस FRBM एक्ट। कब आप अपने अंडर द सेक्शन 4 under the section 4(2) of under the section of 4(2) of act, इस एक्ट का ये वाला हिस्सा, इसके अंडर हमारा आता है ये एस्केप क्लॉज कि आप बच सकते हैं अपने आप को, कि आपने जो सर्टेन टारगेट्स रखे थे आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे इस वजह से कि किन किन वजहों से, नेशनल सिक्योरिटी और वॉर, अगर वॉर हो जाती है या आपका नेशनल सिक्योरिटी जो है वो किसी भी वजह से हैम्पर्ड होती है, इफेक्टेड होती है, देन यू कैन कम अप विदाउट कंप्लीटिंग योर टारगेट्स। तो आप कह सकते हो कि मेरे टारगेट पूरे नहीं हुए। पहली बात क्या हो गई, इसके अंदर आ गया वॉर, नेशनल सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी और वॉर। नेशनल क्लैमिटीज, कोई नेशनल क्लैमिटी आ गई, कोई जैसे हमारे पास कोई भी फ्लड है, अर्थक्वेक है, फेमाइन है, कुछ इस तरह का नेचुरल क्लैमिटी आती है, तो देन यू कैन नॉट एबल टू कंप्लीट योर टारगेट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ योर इनकम इज गोइंग टू बी स्पेंट अपॉन टू क्योर दैट सिचुएशन। आप अपना पैसा जो टारगेट पॉलिसी में लगाना था, जेंडर को बराबर करना था, उसमें नहीं खर्च कर पाओगे। अब आपको सारा पैसा वहाँ पे नेशनल क्लैमिटी को ठीक करने के लिए देना पड़ेगा, सो यू आर नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट्स, दैट्स इट। कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर, आपका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, collapse of agriculture, and most important is structural reform. Structural reform का मीनिंग क्या होता है? Building new
हाँ जी, बिल्डिंग टूट गई उसको वो रिकंस्ट्रक्शन होता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हाँ जी, वो मॉनेटरी रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, मॉनेटरी है बेसिकली, नॉट इकोनॉमिक, बैंकिंग रिफॉर्म या फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है। स्ट्रक्चर, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कैसे होता है इकोनॉमी का स्ट्रक्चर? वेरी नाइस। स्ट्रक्चर कितने इकोनॉमी के? 3 स्ट्रक्चरल इकोनॉमी, मतलब 3 स्ट्रक्चर नहीं है बट 3 सेक्टर्स के थ्रू स्ट्रक्चर बना है हमारा। तो इकोनॉमी में अगर ये स्ट्रक्चर चेंजेस आने शुरू हो जाए, आप बनाते जा रहे हो सारी पॉलिसी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, कृषि विकास योजना, ये योजना, वो योजना, डेवलपमेंट हो गई सारी की सारी इंडस्ट्रीज में, तो आपके किसान की पॉलिसीज बनाई हुई इज नॉट बीइंग बेनिफिटेड टू, दो फ्यू पीपल विल रेस्ट ऑफ विद एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दे विल गेट ऑल द बेनिफिट। और जिनके लिए आपको ज़रूरत है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसके लिए आपने पॉलिसी नहीं बनाई। आप मान लीजिए इस टाइम गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? हु इज बूमिंग अप? सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आईटी और बैंकिंग, इंश्योरेंस और कुछ। ओके, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है? इन सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई? एग्रीकल्चर के लिए भी हैव लॉट ऑफ पॉलिसीज, सब्सिडीज दे रहे हैं, एग्रीकल्चर की रॉ मटेरियल बाहर से सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किसान को लैंड के लिए दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेट पे से रिबेट्स दे रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रिबेट्स दी हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। सर्विसेज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या सर्विसेज दे रही है? ओनली लोन्स, सब्सिडरी लोन्स प्रोवाइड कर रही है। तो वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर रिफॉर्म तो इकोनॉमी में आ गया, सारे लोग तो बिजनेस खोलने को तैयार हैं, आप उनके लिए लोन तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप बैंकिंग को स्ट्रिंजेंट करके रखे हुए हो, आप लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे, सर्विसेज सेक्टर डेवलप हो रहा है, तो आपकी जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स जहाँ एक्सपेंडिचर होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे हो रहा है। तो इस समवेयर समहाउ दैट इज क्रिएटिंग अ रिलैक्सेशन कि आपने पॉलिसी बनाई हुई थी 5 साल के लिए, किसकी? एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, या आपने बनाई थी पॉलिसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, हरियाणा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, वो अभी तक पॉलिसी चल रही है, खर्चा करे जा रहे हो, इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो गया, 100% हो गया, इसके बाद कहाँ खर्चा होगा? सो दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर रिफॉर्म आ गया, तो आपकी पॉलिसी पे किया हुआ खर्चा जो है वो वेस्ट हो जाता है, आप डेफिसिट में आओगे ही आओगे, तो आप टारगेट पूरे नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसी चीज़ में भी आप लोग जो इकोनॉमी है जो है एस्केप ऑफ क्लॉज हो सकता है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, डिक्रीज इन द रियल आउटपुट, राइट डाउन, डिक्रीज इन द रियल आउटपुट, growth of quarters, decrease in the real output growth of quarters by least 3% points, by least 3% points below the average of previous 4 quarters. अगर इकोनॉमी का रियल जो ग्रोथ ऑफ आउटपुट है 3% पॉइंट स्लिप डाउन कर जाए एवरेज 4% चारों क्वार्टर के एवरेज से, मतलब एक क्वार्टर इतना ज्यादा इफेक्टेड हो जाए, वो क्यों हुआ? किसी भी रीजन से हो सकता है ना, कि एक क्वार्टर को फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्राइसिस भी हो सकते हैं किसी चीज़ के। अगर एक क्वार्टर का जो आउटपुट है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो चारों क्वार्टर के एवरेज ग्रोथ रेट से भी 3% आ जाए कम। एवरेज ग्रोथ रेट आपको मालूम है, पहले 4 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4, है ना, पहले क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे क्वार्टर्स, पहले क्वार्टर ने 6% ग्रोथ रेट ली, सेकंड ने 4% ग्रोथ रेट ली, तीसरे ने फिर 5% ग्रोथ रेट ली, फिर फोर्थ ने फिर से 4% ग्रोथ रेट ली। हमने इसका टोटल करके 4 से डिवाइड किया, हमने कहा 16, 17, 18, 19, 20, 20 डिवाइड बाय 4, 5% ग्रोथ रेट एवरेज आई है। एवरेज ग्रोथ रेट परसेंट 5% है। पहले क्वार्टर ने तो 6% की थी ना, लेकिन हमने कहा 5%, दूसरे ने 4% की थी ना, हमने कहा नहीं 5%। इन सब का एवरेज ग्रोथ रेट 5% है, लेकिन आपने एक क्वार्टर में सिर्फ 2% ग्रोथ रेट की होगी, एवरेज क्वार्टर से भी 3% कम।
कम रह गई आपकी ग्रोथ रेट तो आप अपने फिजिकल टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एवरेज जो है हमने आपसे पहले भी बताया था, अर्थमेटिक मीन हाई और लो वैल्यू से इफेक्टेड होता है, ज्योमेट्रिक मीन हाई और लो वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता। तो जब आपकी ये लो वैल्यू हो जाएगी, 3% ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, एवरेज से भी कम, एवरेज तो पहले ही एवरेज है, एवरेज से भी कम हो जाएगी, तो वो आपके टारगेट्स को अचीव नहीं करने देगा। तो आप ऐसे टाइम पीरियड पे कहोगे कि इस क्वार्टर में जी देखो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, तो आप एस्केप ले लेते हो उस फिजिकल डेफिसिट से। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द मेन वन मोर रीजन दैट व्हेन यू आर टेकिंग अ एस्केप फ्रॉम द क्लॉज। इसके बाद बस एक चीज़ और रह गई है, अमेंडमेंट। आफ्टर 2015, 2012 से 2015 में इसके बीच में कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं इसी एक्ट में। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए, बट थोड़े से डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। द वन डिफरेंस इज इट इज अमेंडेड इन 2012-2015 जो अमेंडमेंट्स आई हैं। The first thing is new concept of effective revenue deficit. ये इंट्रोड्यूस हुआ। पहले सिर्फ क्या होता था, रेवेन्यू डेफिसिट किया ना हमने, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो, वो 3 वर्ड्स ले रहे हैं बार बार। यहाँ पे इन्होंने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को इंट्रोड्यूस किया, जो हमारा पहली बार किया गया था इन 2012 में ना। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें चेंज की गई, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट वाज आल्सो एडेड वाया द अमेंडमेंट इन द एफआरबीएम एक्ट। ये भी जो है ना वो थर्ड वाले में, जो थर्ड हमने कहा ना एक्सपेंडिचर वाला, पहले क्या था टारगेट, फिर क्या था एक्शन, थर्ड क्या था एक्सपेंडिचर, फोर्थ क्या था डेफिसिट, फिफ्थ क्या था ट्रांसपेरेंसी। तो वो जो एक्सपेंडिचर वाला था ना, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, वो जो था हमारा आल्सो एडेड वाया द अमेंडमेंट ऑफ दैट, वो भी जो है हमारा बाद में आया। शैल आई राइट डाउन? मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये इंट्रोड्यूस हुआ था अमेंडमेंट के बाद, ठीक है जी। Introduced after the amendments. Third is rolling target for the budget deficits were not included in the recent amendment of FRBM Act. Rolling targets for the budget deficit. Rolling target for the budget deficits were not included in the recent amendment of FRBM. हमने उसमें कहा ना 3-3 साल के रोलिंग टारगेट्स बनाते हैं एक्शन प्लान में, वो अभी इसमें नहीं ऐड करते, वो 5 ईयर का प्लान ही बनाते हैं। हाँ जी, रोलिंग टारगेट फॉर द बजट डेफिसिट वर नॉट इंक्लूडेड इनटू द रीसेंट अमेंडमेंट ऑफ FRBM Act, नॉट इंक्लूडेड इनटू द रीसेंट अमेंडमेंट ऑफ FRBM Act. Fiscal deficit reduction goals. ये भी अमेंड होंगे, हर साल अमेंड होंगे ना। जब पहली बार बनाए थे तो कुछ टारगेट थे, जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो 5-5 साल में, तो ये फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है, इसके गोल जो है वो 2012-13 में फिर से रिफाइन कर दिए, तो अमेंडमेंट आ गई है वो एक तरह से। तो क्या टारगेट है हमारे पास? फिस्कल डेफिसिट टू लेस देन 4.45% ऑफ जीडीपी 25-26 तक। हमारा पहला है
फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.5%, अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर पाए जो हमने टारगेट रखे हुए थे। 4.5% तक कम करना है 2025-26 तक। बजट डेफिसिट्स 6.4%। ये 22-23 है। बजट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट्स 3.8%, हमने पहले भी बात की। ऑफ जीडीपी ऑफ जीडीपी ऑफ जीडीपी आप लिखते रहेंगे। प्राइमरी डेफिसिट्स ये हमने पहले बात की 2.8% ऑफ जीडीपी। That's all target for 22-23। ये सारे टारगेट 2022-23 के हैं। सिर्फ एक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हमने लंबा रखा है, बाकी सारे टारगेट हैं। जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है हमारा लेटेस्ट जो है, डेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज 40% ऑफ जीडीपी। ऑफ द जीडीपी बाय द 24-25, ये कम करना है हमें 24-25। मतलब हमारी जीडीपी का जो टोटल डेट है वो देखो 40% इज बीइंग टारगेटेड नाउ, इट इज मोर देन दैट, सो दैट इज अ फ्यू टारगेट्स दैट हैज टू बी अमेंडेड आफ्टर द टाइम टू टाइम। मेन 3 चीजें तो याद रखनी है, एक तो इफेक्टिव वाला, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट्स नया ऐड हुआ, जो माइक्रो एक्सपेंडिचर वाला था वो नया ऐड हुआ। वो तो 2 चीजें हैं ना जो एक्ट में चेंज आ गई, और बाकी सारी चीजें क्या वो गोल्स है, वो हर टाइम के साथ साथ चेंज होती रहेगी। तो हमारे डेफिसिट्स जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज टू बी रिड्यूस्ड एंड दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय द पॉलिसी फ्रेमवर्क, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसी हो, चाहे एक्सपेंडिचर पॉलिसी हो, और व्हाटसएवर पॉलिसीज आर देयर। सो हियर वी आर एबल टू कंप्लीट अप आवर द टॉपिक ऑफ FRBM, और वी कैन से बेसिकली इट्स नॉट द FRBM, बेसिकली इट्स बजटरी, है ना, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट के अंडर हमने ये सारा टॉपिक कंप्लीट किया। वी स्टार्टेड विद इन्फ्लेशन, इसको टॉपिक को हमने कैरी फॉरवर्ड किया। इन्फ्लेशन से तो वी स्टार्टेड विद इन्फ्लेशन, है ना, हमने इन्फ्लेशन से ही स्टार्ट किया था, इट्स ग्रेट। इन्फ्लेशन के बाद हमने ये डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन ठीक कैसे करना है। इन्फ्लेशन ठीक करने का मेरा एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। फिर फिस्कल पॉलिसी में वो एक्सपेंडिचर टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में बात किया। जब वो फिस्कल पॉलिसी डिसाइड होगी तो फिर हमने कहा ये दोनों मॉनेटरी और फिस्कल ही तो बजट को मैनेज करती है। जब एक्सपेंडिचर हो जाएगा, पॉलिसी लगा लोगे, फिर भी ठीक नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, फिर बजट को मेंटेन करोगे। बजट को मेंटेन करते करते हम FRBM पे आ गए। तो हियर वी कंप्लीट द इन्फ्लेशन एज वेल एज द बजटरीज, ठीक है। बजटरी का मैंने आपको जो कल चार्ट हमने किया, जो हमने वो टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला किया था, वो वाला, एज वेल एज हमारे टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, प्लीज गो थ्रू विद दैट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। FRBM का एक क्वेश्चन बन जाता है बेसिकली इसके कुछ ये टाइप्स के बारे में या कुछ डेटा, रिसेंट डेटा के बारे में। प्लीज कीप इन माइंड कब आया, किसने स्टार्ट किया, टाइप्स क्या होते हैं बजटिंग के, जीरो बेस एंड ऑल्सो ऑन। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा वो जो प्राइमरी और रिवेन्यू बजट एंड फिस्कल बजट, वो वाला इम्पॉर्टेंट, वो आप ध्यान रख के करिएगा, ठीक है जी। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। वी कैन गो फॉर सम माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक एज वेल, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन मेनी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टॉपिक। डेवलपमेंट के भी एक टॉपिक्स हमने कर लिए, MPI कर लिया, HDI कर लिया, डेवलपमेंट मेजर्स कर लिए। यहाँ से हमने इंडियन इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन कर लिया, पॉवर्टी कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं किया अभी, ओके। सो वी हैव डन द बोथ ऑफ द टॉपिक्स। मैं एक ही तरह के टॉपिक्स नहीं करा रही हूँ ताकि आप मोनोटोनस सा फील करते हैं। बीच में एक मैक्रो का कर लेते हैं, एक माइक्रो कर लेते हैं, एक इंडेक्सेस कर लेते हैं, तो इट विल कम अप विद ऑल द टॉपिक्स। सो वी कैन स्टार्ट विद सम माइक्रो टॉपिक आफ्टरवर्ड्स। यू ऑल हैव ऑलरेडी डन विद सम माइक्रो टॉपिक्स, मतलब प्रायर टू दिस कोई माइक्रो का टॉपिक आपने किया है? अदरवाइज इन
general respect of paper, there is not much more paper question regarding demand and elasticity of demand, है ना, बहुत कम होते हैं वो टॉपिक, पेपर में नहीं आते हैं, बट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक यू मे गो हेड विद दैट। तो इसके बाद हम देखते हैं एक माइक्रो का कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगर लगा तो, नहीं देन वी हैव गो फॉर दिस थिंग, नहीं तो फिर डेवलपमेंट का या बैंकिंग में भी आ सकते हैं, ये बैंकिंग का टॉपिक है। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क, हमें सब आता है। Which one जी? Revenue, ये मीडियम टर्म, ये वाला एक्ट में आया ही तब है जब अमेंड हो गया। मीनिंग इसमें हम तो मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर, हमने सेकंड थर्ड टारगेट क्या रखा था, एक्शन एंड स्ट्रेटजी, कि आपने अपने टर्म्स को फाइनेंशियल फिस्कल टारगेट क्या आपके, पहला था टारगेट के बाद क्या किया आपने, एक्शन और स्ट्रेटजी क्या बनाई, स्ट्रेटजी के बाद उसका एक्सपेंडिचर करोगे ना, एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क करोगे कि मीडियम टर्म के टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपने क्या एक्सपेंडिचर किया। वो जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये ऐड हुआ आफ्टर अमेंडमेंट, पहले सिर्फ टारगेट होते थे और उसके बाद रिजल्ट देख लिए जाते थे, तो इन्होंने बीच में एक ऑब्जेक्टिव और डाल दिया कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी मेजर करो, ठीक है, वो थर्ड टाइम आफ्टर द अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ था, पहले नहीं था वो चीज़। डन, so that's it for today and rest we can discuss tomorrow.